बीमिश बुकवर्म्स के क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम बाल भारती स्टैंडर्ड 7 का पाठ ऑड वन इन पढ़ेंगे और समझेंगे। ऑड वन आउट इज एन इडियम इन इंग्लिश जिसका मतलब होता है सभी अन्य लोगों से अलग, डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। यहाँ ऑड वन इन का प्रयोग हुआ है, which means अलग होने के बावजूद ग्रुप में घुल मिल जाना, ग्रुप का अभिन्न हिस्सा बन जाना, becoming a part of the whole। आओ पाठ पढ़ते हैं। Odd one in। How was the first day of school? Asked mother as Reema sat down for dinner. Okay, Reema shrugged. No lessons, just settling in. Any new girls in your class? Inquired her father, Mr. Sen. Only one, Malti. And she is funny, grimaced Reema as she helped herself to the salad. Why do you say that? Asked Mr. Sen. She can't speak much English. She has come from another state, sniffed Reema, naming one of the other end of the country. Oh, children from that state are supposed to be very clever. They are especially good at maths, said Mr. Sen quietly. Well, this one does not seem smart at all. Oily hair, bindi and all. Good morning, teacher, mimicked Reema. Settling in मतलब becoming used to a place. Shrug, कंधे उचकाना. Grimace, मुंह बनाना. Mimic, नकल करना। रात को डिनर टेबल पर रीमा की मम्मी ने उसके नए क्लास में फर्स्ट डे के बारे में पूछा। रीमा ने कुछ खास उत्साह से जवाब नहीं दिया, यही कहा कि कुछ पढ़ाई नहीं हुई। पिताजी ने पूछा कि कोई नई लड़कियां क्लास में जुड़ी हैं, तो रीमा ने मुंह बनाकर उत्तर दिया, केवल एक लड़की ने दाखिला लिया है जिसका नाम मालती है और वो बहुत अजीब है। ये बात पिताजी को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने पूछा कि वो ऐसा क्यों कह रही है। रीमा ने कहा कि मालती दक्षिण भारत से है और उसे ठीक से इंग्लिश बोलना नहीं आता। पिताजी ने कहा कि दक्षिण भारत के विद्यार्थी पढ़ाई में बहुत तेज होते हैं, खास करके मैथ्स में। रीमा ने फिर एक बार मुंह बनाया और कहा कि मालती तो बिल्कुल स्मार्ट नहीं लगती। उसके माथे पर बिंदी है और बालों में बहुत सारा तेल लगा हुआ है। उसने मालती की नकल भी की कि वो कैसे साउथ इंडियन एक्सेंट में क्लासरूम में बोल रही थी। आगे पढ़ें। Her parents exchanged glances. Reema was their only child. They doted on her, but she could be insufferable at times. I do hope you and your friends will not make things too difficult for Malti, sighed Mr. Sen as he rose from the table. Reema and her gang had decided to do just that. Next morning, the minute Malti entered the class, they all chorused, Good morning! Poor Malti. She did not realize that they were making fun of her. She beamed back at them and replied, Good morning! ग्लांस माने नजर मारना, डोट माने बहुत ज्यादा प्यार करना, इनसफरेबल अनबेरेबल, कोरस एक स्वर में एक साथ बोलना, बीम मुस्कुराना। रीमा की बातें, उसका एटीट्यूड उसके पेरेंट्स को पसंद नहीं आया। उन्होंने एक दूसरे को देखा मानो आंखों से अपना डिस्प्लेजर, अपनी असंतुष्टि जाहिर कर रहे हों। रीमा उनकी इकलौती संतान थी, इसलिए ज्यादा लाड़ प्यार के कारण वो बिगड़ गई थी। कभी कभी उसके मुंह से गलत शब्द निकल जाते थे। उसके पिताजी ने उससे कहा कि सभी लड़कियों को मालती से अच्छे से पेश आना चाहिए, लेकिन रीमा और उसकी सखियों ने प्लान बनाया था कि मालती की किस तरह से खिल्ली उड़ाई जाए, उसे किस तरह से अपमानित किया जाए। अगले दिन सवेरे जैसे ही मालती ने कक्षा में प्रवेश किया,
सभी ने उसकी एक्सेंटेड इंग्लिश की नकल उतारी, पर बेचारी को ये समझ नहीं आया कि सब उसकी टांग खींच रहे हैं, और उसने नम्रतापूर्वक सबको गुड मॉर्निंग विश किया। आगे पढ़ें। Shehnaz giggled. Why do you put so much oil on your hair? She asked rudely. Malti looked offended but did not reply. And the skirt so long, said Claire cattily. Malti flushed. She was about to say something when teacher entered. As the class progressed, everyone was surprised to see Malti raise her hand whenever teacher asked a question. Yes, Malti, you answer, said teacher. Malti answered correctly and teacher nodded in appreciation. When Rima recounted this at home, her mother said, Sounds like a clever girl. What is the use? Said Rima uncharitably. Her English is so atrocious. The same may be said of your Hindi, countered Mr. Sen sharply. He was getting quite sick of Rima's attitude. Even Mrs. Sen did not like it. That night, Rima's parents discussed the matter. Giggle होता है laughing in a silly way, offend बुरा मानना, cattily in a cruel way चिढ़ाने के लिए, flushed embarrass होना, शर्म से लाल हो जाना, recounted याद करते हुए, uncharitably क्रूरता और बदतमीजी से बोलना, atrocious भयानक horrible, countered पलटकर जवाब देना। शहनाज ने मालती का मजाक उड़ाते हुए रूडली पूछा कि वो अपने बालों में इतना तेल क्यों लगाती है। मालती को इस बात का बहुत बुरा लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। क्लेयर ने भी उसके साथ बदतमीजी की, उसकी स्कर्ट के ऊपर कुछ रिमार्क्स दिए। मालती बुरी तरह एम्बैरस हुई और वो कुछ जवाब देती इससे पहले टीचर क्लास में आ गई। मालती इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी। वो सभी क्वेश्चंस के आंसर आराम से दे रही थी। ये देखकर सभी लोग हैरान थे। जब रीमा ने घर जाकर अपनी मम्मी को ये बताया, तो उसकी मम्मी ने मालती की प्रशंसा करते हुए कहा कि वो बहुत होशियार लड़की मालूम होती है। मालती की प्रेज सुनना रीमा को अच्छा नहीं लगा। उसने रूखेपन और अशिष्टता के साथ कहा, क्या फायदा, उसकी इंग्लिश तो बेहद भयानक है, हॉरिबल है। उसके पिताजी ने अपनी बेटी के मुख से ऐसे असभ्य वचन सुने तो उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, यही बात मैं तुम्हारी हिंदी के बारे में भी कह सकता हूँ, वो भी तो ऑफुल है। उन्हें और उनकी पत्नी को रीमा का ये रवैया, ये बैड एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। रात को दोनों ने इसी बात को आपस में डिस्कस किया। आगे पढ़ें। We put Rima into a good school to make her smart and confident. I'm afraid she's turning into quite a little snob, said Mr. Sen sadly. The following Saturday was the inter-house singing competition. Rima, who was participating in the English song category, was surprised to see Malti's name in the list of participants for the Hindi song category. Oily Plate sings also, she said snidely to Claire. Croaks, you mean, giggled Claire. They were to be proved wrong. Malti sang beautifully. She had a melodious and well-trained voice. Rima and her gang had decided to jeer when Malti sang, but there was such absolute silence they did not dare to. They were sure to get caught. When Malti finished, the principal was the first one to start clapping, followed by the teachers and students. No one was surprised when Malti won the first prize. Rima did come first in her category. Somehow, she felt no joy. Snob माने snooty, नक चढ़ा, a person who looks down on others. Plate बालों की चोटी. Croak कर्कश स्वर, husky voice. Snidely, nastily, unkindly.
जियर, ताना मारना। रीमा के पेरेंट्स दुखी थे उसके एटीट्यूड से, उसके शर्मनाक बर्ताव से। वे यही डिस्कस कर रहे थे कि उन्होंने रीमा को अच्छे बड़े स्कूल में दाखिला दिलवाया था ताकि वो स्मार्ट बने, उसमें खूब आत्मविश्वास हो। मगर वो तो बिल्कुल बिगड़ गई है, नकचड़ी बन गई है। दूसरों को इज्जत देना, अपने से भिन्न व्यक्ति को समझना, उसका सम्मान करना वो बिल्कुल भूल गई है। रीमा के स्कूल में सिंगिंग कंपटीशन था। वो अंग्रेजी में गाना गाने वाली थी और उसे ये देखकर हैरानी हुई कि मालती हिंदी सिंगिंग में भाग लेने वाली थी। उसने अपनी फ्रेंड से फिर मालती की बुराई करते हुए कहा कि तेली चुटिया वाली गाती भी है। उसी रूड नास्टी रिमार्क के जवाब में क्लेयर ने भी ताना मारा कि उसकी आवाज तो मेंढक जैसी है। मगर मालती की आवाज मीठी व मधुर थी। रीमा और उसकी सखियां मालती का मजाक उड़ाना चाहते थे, शोर मचाकर उसका ध्यान गाने से हटाना चाहते थे, पर वे ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि ऑडिटोरियम में एकदम शांति थी। वे आसानी से पकड़े जाते। मालती का परफॉर्मेंस इतना बढ़िया था कि प्रिंसिपल मैम ने खड़े होकर तालियां बजाईं। मालती को फर्स्ट प्राइज मिला। फर्स्ट प्राइज तो रीमा को भी मिला, पर उसे ज्यादा खुशी नहीं हुई। वो तो मालती को हारते हुए, अपमानित होते हुए देखना चाहती थी। आगे पढ़ें। As the term progressed, it was abundantly clear to all that Malti was a bright child. She was quiet, studious, and intelligent. She fared well in sports as well as in studies. Her forte was mathematics. Her simple appearance belied a sharp and nimble brain. Slowly, many of the girls began seeking her help in mathematics, help which she readily and cheerfully gave. The teachers had liked the respectful, intelligent girl from the beginning. Now girls from the class also befriended her. Not Rima and her clique, though. They stubbornly disliked Malti. They were a stylish lot, and nothing that Malti did could alter the fact that she was not their type. They never lost a chance to poke fun at her, particularly her English. Abundantly, very much. Studious, होशियार, मेहनती. Fared, performed. Forte, strong point. Belied, contradict, disagree. Nimble, quick to understand. Clique, exclusive group of people. Alter, change. Poke fun, मजाक उड़ाना. जैसे जैसे समय बीतता गया, ये बात साफ हो गई कि मालती बहुत ही होशियार, शांत और मेहनती है। वो न केवल पढ़ाई में बल्कि खेल कूद में भी आगे थी। मैथ्स में तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं था। उसकी सादगी देखकर ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि उसका दिमाग इतना तेज है। सभी लड़कियां धीरे धीरे मैथ्स में उसकी मदद मांगने जाने लगीं। वो सभी की मदद खुशी खुशी करती थी। उसके अध्यापक अध्यापिकाएं तो पहले से ही उसे पसंद करते थे। अब क्लास की लड़कियां भी उसे पसंद करने लगीं, उससे दोस्ती करने लगीं, सिर्फ रीमा और उसकी सखियों को छोड़कर। वे सब जिद्दी और बिगड़ी हुई लड़कियां थीं। वे खुद को स्टाइलिश और फैशनेबल मानती थीं। उनके हिसाब से मालती उनके हाई लेवल की नहीं थी। वे लोग मौका ढूंढती थीं उसकी खिल्ली उड़ाने का और उसे अपमानित करने का। आगे पढ़ें। Malti felt bad about their behavior. One day she was on the verge of tears when Rima mocked at her mercilessly because she said "ux" instead of "ask." Her voice trembling, Malti said, "I know my English is weak. Yours is good. Please, will you help me to improve it?" "I won't be able to help you, my dear," replied Rima with an exaggerated accent. "Speaking proper English isn't easy for you countrified types." On the verge of, on the border of, कगार पर.
मॉक टू रिडिक्यूल, उपहास करना. mercilessly, बेरहमी से, बिना दया के. exaggerated, abnormally increased. countrified, देहाती, गंवार. मालती को रीमा और उसकी सखियों का बर्ताव अच्छा नहीं लग रहा था. एक दिन तो उसकी आंखों में आंसू आ गए जब रीमा ने उसका अपमान किया, जब उसने एक इंग्लिश वर्ड को मिसप्रोनाउंस किया. उसने कांपते स्वर में रीमा से कहा कि उसकी इंग्लिश कमजोर है, क्या वो उसको इंग्लिश सिखाएगी. रीमा ने बहुत बदतमीजी से जवाब दिया कि उसके जैसी गंवार लड़की को अच्छी इंग्लिश बोलना कभी नहीं आएगा. आगे पढ़ें. Malti's face turned red. She wanted to retort but could not find the right words. She burst into tears and ran off. That was horrid, Rima, said Shehnaz. Yes, agreed Neha and Claire roundly. Rima was shocked. Her own friends had turned against her. She walked off in a huff. Mrs. Sen found her subdued over lunch but decided not to ask anything. Rima knew that she had behaved very badly. She was too proud to admit it, even to herself. Turned red, शर्म से लाल हो जाना, embarrass हो जाना. Retort, मुंह तोड़ जवाब देना. In a huff, गुस्से से चले जाना. Subdued, sober, शांत. रीमा के मुख से ऐसे अपमानजनक शब्द सुनकर मालती का चेहरा शर्म से लाल हो गया. वो रीमा को जवाब देना चाहती थी, पर उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे. बेचारी फूट फूट कर रो पड़ी और रोते रोते वहां से चली गई. रीमा का ऐसा बिहेवियर देखकर उसकी अपनी सहेलियों ने भी उसे लताड़ा, उसे सख्त शब्दों में क्रिटिसाइज किया. रीमा एकदम हैरान रह गई. उसकी अपनी फ्रेंड्स उसके खिलाफ हो गई थीं. वो भी गुस्से में वहां से चली गई. दोपहर को उसकी मम्मी ने उसे बहुत शांत और चुपचाप पाया, पर उन्होंने उससे कुछ नहीं पूछा. रीमा खुद भी मानती थी कि उसका बिहेवियर बहुत खराब था, पर उसका ईगो आड़े आ रहा था. वो खुद को ही नहीं मना पा रही थी कि वो गलत है, तो फिर वो मालती से माफी कैसे मांगती. यहां पूरा होता है ऑड वन इन का एक्सप्लेनेशन. आई होप ये पाठ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. बीमिश बुकवर्म्स की तरफ से आज इतना ही. हैप्पी रीडिंग, हैप्पी स्टडिंग एवरीवन. आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा. इन केस आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप उनसे पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको आज मेरे साथ सीखने में मज़ा आया तो प्लीज़ बीमिश बुकवर्म्स को लाइक और सब्सक्राइब करें. साथ ही में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.